Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. Chapter Kings, Farmers and Town. Kings, Farmers and Towns. My dear students, if you have remember, we have studied about the different topics like the rise of Magad, Mahajanpad, Janpad, and the oligarchy form of the government, and also we studied about the vast history of the 1000 BC2. I mean to say that 600 BC to 600 AD. ये वो समय था जब भारत में तमाम बदलाव हुए और उस बदलाव में पॉलिटिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन सभी महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे जब भारत अर्बनाइजेशन से सीधे किधर की तरफ मूव कर रहा था, रूरल बैकग्राउंड से, ग्रामीण संस्कृति से एक शहरी संस्कृति की तरफ मूव कर रहा था, अर्बनाइज हो रहा था। और सेकेंड अर्बनाइजेशन एक बार इंडिया में री इंट्रोड्यूस हो रही थी। तो ये वो समय था जब हमने बात की, हमने महाजनपदों की बात की और उस महाजनपदों के बारे में हमने डिटेल किया था कि किस तरीके से महाजनपद अपने अपने क्षेत्र में एक्सपेंड। आई होप यू हैव रिमेंबर दैट वी हैव डिस्कस्ड द मौर्यन एम्पायर। My dear student, in the Mauryan Empire, we studied about Chandragupta. Chandragupta Maurya. आई होप कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था, ये आपको पता होगा। इनकी डेटिंग हमने लिखी थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कब से कब तक, मैंने कहा था 322 to 298 BC. That was the time which was also explained by me in your previous class. That was the time. ये वो समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर शासन किया. He was the founder of Mauryan dynasty. No doubt to say, without any hesitation, you have aware of that कि Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan dynasty. Thereafter, the second king, the Bindusar. Bindusar, he was son of Chandragupta Maurya and successor also. He ruled on the Mauryan Empire from 298 BC to 273 BC. That is very important. And third, Asoka, who ruled 273 BC to 236 BC. मैंने बार आपसे कहा ये डेट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट आपको दिखाई देगी। कब से? मैंने कहीं 271 BC टू 232 या 221 तक लिखा, या आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़िए। अगर आपकी एनसीईआरटी होगी तो आप एनसीईआरटी में देखिए, वहाँ पे डेट आपको फ्लक्चुएट दिखेगा क्योंकि प्रॉपर डेट नहीं है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन हमने फिलहाल आप मोटा 237 to 36 मैं आपको इसको 236 BC इसके बारे में हमने बात की। और फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हुए कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंडर ऑफ Chandragupta Maurya. Their name was found in the Greek literature, the Sandrocotus, Androcotus. देखिए सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दो नाम थे। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस से तादाद में स्थापित किया कि ये नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। और फिर इसके राज्य की जो परिस्थितियां थी, ये किस तरीके से मगध एम्पायर को प्राप्त किया, इसकी जाति क्या थी और किस तरीके से इसने वेस्टर्न फ्रंट को जीतते हुए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट को जीतते हुए
फिर वो सीधे मगध की तरफ पहुंचा और उसने मगध साम्राज्य की स्थापना की। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने पूर्व क्लास में पढ़ लिया। What we studied, I mean to say that the name of the Sandrocotus and Androcotus, that name was given by the Greek writers. First time, William Jones, who was founder of Asiatic Society of Bengal in 1784, he related the name to the Chandragupta Maurya, and according to him, the Sandrocotus and Androcotus, the name which was given by Justin and Plutarch, who wrote their own, I mean to say that accounts. That what he wrote about the Chandragupta Maurya, he explained first time the William Jones. My dear students, second things what I Bindusar told you, Bindusar. Actually, Chandragupta Maurya, their early history, that is the very difficult for the historian to express because there were no proper evidence about that. We have to, based on the Brahminical, Buddhist and Jainism literature, on the basis of that we found the different views. Like some try to prove that he was Sudra, some try to prove that he was the Guptas, and some try to prove that he was the Kshatriya. But after all, there are a lot of historians, the group of historians, they believe that he was Kshatriya. If he was not Kshatriya, how can possible that the Dvijarsa, Kautilya, I mean to say that the fanatic extremist follower of the Brahmanical religion, Kautilya accepted him as his disciple, and he appointed a king of the Magad. Okay, so that's why I mean to say that कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकारों का मानना था, abundant historians they believe that he was Kshatriya. Both and Jainism texts try to prove that he was Kshatriya. I told you that the story of Mahabodhivans, Mahaparinibbana Sut, Divya Vadan, what he wrote, even Jain Granth also, Jain text also. In one word, they proved that he was Kshatriya. What was his mother's name? We don't know. What was his father's name? We have no clear information. But according to Jainism text, his father's name was Bapyat, but it was not clear. We have no inscriptional evidence. We have no archaeological evidence. We have no also, except the Jainism text, other textual evidence. तो हमें इसके बारे में एक थोड़ा अंधकार है, हम इसके बारे में पूरी इतिहास को ठीक से नहीं जानते। हाँ, इतना जानते हैं कि चाणक्य ने इसे उठाया, 1000 का रुपये में खरीदा और फिर इसे खुद इसे शिक्षित किया, तक्षशिला ले आकर के, और शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में दीक्षित करके उसे मगध की गद्दी पे आसीन करा दिया। तो ये काम चंद्रगुप्त से चाणक्य ने करवाया। चाणक्य चूंकि कट्टर ब्राह्मण था, कठोर ब्राह्मण था, इसलिए वो किसी क्षत्रिय बच्चे को ही राजा बनाया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मत है, क्योंकि अन्य किसी जाति के लोग को राजा बनाए ये संभव इतिहासकारों को नहीं लगता। इसलिए इतिहासकार जैन धर्म के जो साहित्य हैं उन साहित्यों पर विश्वास करते हुए इसे क्षत्रिय मानते हैं। ये तो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सूचना। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पे बैठा। बिंदुसार के बारे में सूचना हमें जो मिलती है वो भी हमें इन्हीं चीज से मिलती है। किससे? अगर बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के जीवन तथा उपलब्धियों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यंत ही क्या है, कम है, सूक्ष्म है। उसकी महानता इस तथ्य में निहित है कि वह अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे वो एज इट इज बना कर रखा। जैनिज्म टेक्स्ट बिंदुसार की माता का नाम दूधरा लिखते हैं। मदर्स नेम दूधरा। कौन कहता है ये बात? जैनिज्म टेक्स्ट कहते हैं। जैनिज्म टेक्स्ट इस बात का उल्लेख करते हैं। ये तो हुआ मदर्स नेम। फादर्स नेम चंद्रगुप्त मौर्य, मैं लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फादर कौन था? फादर्स नेम चंद्रगुप्त मौर्य एंड देन आफ्टर व्हाट, कि अब इसके नाम क्या है?
टाइटल क्या थे इसके? टाइटल इसके क्या थे? सिंहसेन, या सिंहासन भी लिखा है, सिंहासन, सिंहासन। इसके अलावा ग्रीक जो टेक्स्ट है उसमें इसका नाम अमित्रोकेडीज मिलता है, अमित्रोकेडीज। अमित्रोकेडीज को अगर ट्रांसलेट करें तो होता है अमित्रघात, अमित्रघात, इसका नाम अमित्रघात प्राप्त होता है। तो ये थे उसके नाम जिनके आधार पे हम थोड़े बहुत इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू प्रूव यू दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द नेम ऑफ द बिंदुसार एंड देयर द व्हाट सम अपॉर्चुनिटीज। उसके बारे में इतना कहा जाता है कि उसने क्या किया, उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए राज्यों को उसने बचा के रखा। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जैन ग्रंथ में जैसा कि मैंने बताया कि इसका नाम अमित्रघात प्राप्त होता है, सिंहासन प्राप्त होता है, कभी कभी जैसे सिंहसेन भी कहते हैं। इन उपलब्धियों में वो एक चीज के बारे में कही गई जो साफ साफ कहता है, वो ये कि अत्यंत ही विलासी प्रवृत्ति का था ये, और इसी विलासता के समय में ही, बिंदुसार के समय में ही, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, कलिंग स्वतंत्र हो गया था। कलिंग के स्वतंत्र होने के लिए इसका विलासीपन होना सबसे महत्वपूर्ण कारण बना बिंदुसार का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा बिंदुसार जो चंद्रगुप्त जैसे महानतम शासक का पुत्र था, इतने बड़े साम्राज्य का उसके हाथ में थी, उसके राज्य में सर्वत्र शांति नहीं थी। बिंदुसार के समय कई जगह रिवोल्ट हुए, जैसे तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ। तक्षशिला का प्रांतपति, गवर्नर, उसका बड़ा पुत्र सुसीम था, और उसका एक पुत्र अशोक जो उज्जैनी का प्रांतपति था, अवंती का प्रांतपति था। उज्जैनी में अशोक और तक्षशिला में, उत्तरापथ में सुसीम, उत्तरापथ का रिवोल्ट, अशोक का वहां पहुंचना, रिवोल्ट को दबाना, तो फिर अशोक का नेपाल विजय, और इन सारी चीजों ने अशोक को एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में लोगों के समक्ष क्या किया, प्रूव किया। लोगों के मन और मस्तिष्क में यह बात बन गई कि अशोक एक योग्य उत्तराधिकारी बनेगा बिंदुसार का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अशोक चतुराई के साथ इन चीजों को कर रहा था। सुसीम उसका बड़ा लड़का था, लेकिन अशोक जनता में फेमस होता जा रहा था, और ये बातें बिंदुसार को फेमस नहीं, प्रिय नहीं थी, क्योंकि बिंदुसार अपने बाद अपने राज्य का उत्तराधिकारी सुसीम को बनाना चाहता था। और यहीं पे इतिहासकार कहते हैं कि सुसीम और अशोक के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा। इसके बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथ एक सूर में कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा। फिलहाल when we will discuss about Ashoka, we will read all about things, but पहले फर्स्ट we are क्या स्टडिंग अबाउट बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बिंदुसार इन चीजों के अलावा, टाइटल उसकी सिंहसेन थी, इसकी कुछ और उपलब्धियां थी। इसके समय, बिंदुसार के समय, कुछ यूनानी राजाओं के साथ इसके मैत्री संबंध थे। स्ट्रैबो लिखता है कि सीरिया के राजा, जो सीरिया के शासक थे, एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना दूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा। एंटियोकस ने डाइमेकस भेजा। एंटियोकस जो सीरिया के थे, शासक थे, उन्होंने किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा। इसी डाइमेकस का सक्सेसर बनके कौन आया? मेगास्थनीज आया। तो सीरिया के शासक डाइमेकस का उत्तराधिकारी बनके मेगास्थनीज आया। कहता है, प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक अपना एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा।
टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस किसको भेजा? डायोनिसियस को, डायोनिसियस को भेजा। इतिहासकार कहते हैं कि डाइमेकस और डायोनिसियस दोनों किसके राज दरबार में आए? दोनों पहुंचे इसके बिंदुसार के राज दरबार में। ये राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे गए थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, परंतु यह स्पष्ट पता नहीं है ये राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए या अशोक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में, क्योंकि अशोक के समय मिस्र नरेश दोनों के समय कहता है कि अशोक जो था उसके समय इन राजाओं से अच्छे संबंध अशोक के थे। मिस्री नरेश ने इन दोनों समय में आए थे अथवा उसके पुत्र अशोक के समय ये लोग आए, ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक मौर्य सम्राटों का समकालीन था। वो एथेनियस जो कि यूनानी लेखक था, वो बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब एथेनियस ये राइटर था, ये एथेनियस लिखता है कि बिंदुसार ने डिमांड की, किसका? बिंदुसार ने कहा कि हमें क्या चाहिए? एक सोफिस्ट चाहिए। एथेनियस जब इस बात को लिखता है, जो यूनानी लेखक था, ने बिंदुसार और सीरिया के नरेश के बीच की पैक्ट के बारे में उल्लेख करते हुए कहता है कि सीरिया नरेश से उसने क्या मांगी? बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, वाइन, स्वीट वाइन, अंजीर और एक सोफिस्ट मतलब एक फिलासफर मांगा। सीरियाई नरेश ने मीठी मदिरा और अंजीर तो दे दी, लेकिन उसने ये अपने यहाँ के दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया। उसने कहा कि राज्य की संपत्ति होते हैं ये लोग, इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं भेज सकते। तो इस संबंध के बारे में वो बातें करते हुए एथेनियस का ये विवरण, जो राजाओं के बीच मैत्री संबंध थी, वो महत्वपूर्ण बातों को एक्सप्रेस करती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण था कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि चूंकि विलासी प्रवृत्ति का था, तो इट मे बी पॉसिबल कि इसी के समय में ही कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हो गया होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त के शासन काल में इस तरह की कोई व्यवस्था रही होगी, ये क्लियर नहीं कह सकते। माय डियर स्टूडेंट, this is the opportunities and the shortcomings of the Bindusar. Again, I am telling you what is the importance of the Bindusar in the Mauryan Empire. No doubt to say that he was successor of Chandragupta Maurya. His mother's name was Durdhara according to Jain literature, and his father Chandragupta Maurya, he became the king of Mauryan Empire after the death of Chandragupta Maurya. His great opportunity to to unite, to establish that empire which was founded by his father Chandragupta Maurya. But as I told you that he was not the able successor of Chandragupta Maurya, so that's why during his time it may be possible that Kaling became free. It may be possible that Kaling क्या किया होगा, उसने स्वतंत्र प्राप्त, अपनी अलग स्वतंत्रता स्थापित कर ली होगी। तो ये जो चीजें हैं ये अपने में महत्वपूर्ण थी, ये अपनी बातों को कहीं क्यों की कमी होगी, लेकिन इसके संबंध विदेशी शासकों से थे। विदेशी राजाओं के साथ इसके महत्वपूर्ण संबंध हमेशा रहे। जैसे कि बात उल्लेख आती है, एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा, एंटियोकस द्वितीय ने, फिर एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस को भेजा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये दोनों जो दूत आ रहे हैं ये किसके समय में आए ये क्लियर नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बिंदुसार के अंतिम समय में आए, कुछ इतिहासकार मानते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं, डायोनिसियस और एंटियोकस ये दोनों अशोक के प्रारंभिक शासनकाल में मौर्य एम्पायर में आए होंगे, मौर्य दरबार में आए होंगे, ऐसा उनका मानना है। एक और उल्लेख आता है
एथेनियस का, जो यूनानी लेखक था। एथेनियस लिखता है कि जब सीरिया के शासक से बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की, तो सीरिया के शासक ने मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाते हुए मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से उसने मना कर दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसके फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर बताती हैं कि वो उसके संबंध भी विदेशी राजाओं से थे। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बिंदुसार के बारे में। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अशोक के बारे में। बिफोर स्टार्ट अशोक, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द बिंदुसार। कौन था ये बिंदुसार, थोड़ा सा जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, मैं एक बार फिर उसको एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बनी रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य के तुरंत बाद अशोक गद्दी पे नहीं आया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे बैठने वाला जो दूसरा शासक था वो उसका पुत्र बिंदुसार था। इतिहास में कई सारे लेखकों ने, मैंने देखा कई सारे विचारकों ने, कई सारे अच्छे विद्वानों ने, या टीचर्स आल्सो, दे कंफ्यूज की बिंदुसार एंड बिंबिसार दोनों के बारे में। बिंदुसार अलग थे और बिंबिसार अलग थे। बिंबिसार 594 बीसी में थे। ये अर्ली मगध एम्पायर के फाउंडर थे, हर्यंग डायनेस्टी के थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और ये मौर्यन डायनेस्टी का था, और ये 3 या 3rd सेंचुरी बीसी में आया, 200 सालों के बाद आया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son Bindusar. We know little about the king. The Jain scholar Hemchandra and Tibetan historian Taranath say that Chanakya outlived Chandragupta's and continued as a minister of Bindusar. From Divyavadan, we came to know that the Bindusar appointed his eldest son Sumana, also named Susim. सुमन और सुसीम दोनों का एक ही नाम था, his viceroy of Takshila, and Ashok at Ujjaini at last tells us that revolt broke out the Takshila, and when it could not be suppressed by Susim, Ashok was sent to restore peace. Some scholars give the credit of South Indian conquest to Bindusar, but most scholars believe that this was done by his father Chandragupta Maurya. Bindusar continued the policy of friendly relation with the Hellenic world. Pliny mentioned that the Ptolemy Philadelphus of Egypt sent Dionysius as his ambassador to his court. My dear student, यहाँ पे 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जैन स्कॉलर हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, तिब्बतन लेखक तारानाथ का बुक, और फिर दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ। इन 3 चीजों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। शुरुआत की जानकारी बिंदुसार के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस, और ये सोर्सेस बहुत कुछ है, हमें बिंदुसार के बारे में एग्जैक्टली क्लियर एक्सप्लेन कर देती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, बिंदुसार इसकी मैंने डेट लिखी, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा 298 टू 273 बीसी। कहीं कहीं ये डेट ऐसे लिखता है 300 बीसी टू 236 बीसी, अलग अलग डेट, या 273 बीसी। तो 2 साल का यहाँ आपको वेरिएशंस आपको दिखेंगे। ये एनसीईआरटी में लिखी है, और ये आप झांसी माली की बुक में मिल जाएंगी, केसी श्रीवास्तव की बुक में मिल जाएंगी, आपको गोविंद चंद जीसी पांडे की बुक में मिल जाएगी। तमाम सारे बुक में आपको ये डेट आपको मिल जाएंगी। मैंने बिंदुसार की टाइटल्स के बारे में बात किया,
मैंने कहा अमित्रोकिडीज, अमित्रोकिडीज, मैंने कहा संस्कृत में इसको अमित्रघात, जैन ग्रंथ इसको संस्कृत, ग्रीक, देन आफ्टर इसको सिंहासन या सिंहसेन, सिंहसेन, जैन लिटरेचर, और फिर इन सूचनाओं को मैंने आपसे कहा, इनके बारे में इनिशियल सूचनाएं हमें कौन देती हैं? हमने आपसे कहा कि हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व कौन सा ग्रंथ है? ये जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्व, बौद्ध तारानाथ तिब्बतन राइटर्स, तारानाथ, और बौद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यावतार। यहां पे इनके बाद इसने अपना सक्सेसर किसे बनाया? बौद्ध ग्रंथ तारानाथ लिखते हैं, जो तिब्बतन लिटरेरियंस हैं, ये लिखते हैं कि इसने सुमन को, जिसको सुसीम कहते हैं, उसने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया। सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर, अपॉइंट किया, प्रांतपति जिसको बोलते हैं, और अशोक को उज्जैनी, अवंती का गवर्नर अपॉइंट किया। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है। इनके मदर का नाम दोधरा मिलता है जैन लिटरेचर में, पिता का नाम, फादर नेम इनके चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। इनके समय में कुछ घटनाएं हुई, कुछ रिवोल्ट हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि तक्षशिला का रिवोल्ट, जहाँ पे सुसीम गवर्नर थे, और सुसीम इस रिवोल्ट को दबाने में असमर्थ हुए, तो फिर इसकी जगह अपॉइंट कर दिया गया अशोक को। अशोक यहाँ का प्रांतपति हुआ, और अशोक प्रांतपति बनने के बाद क्या किया इसने? अशोक ने उदारता की नीति अपनाते हुए तक्षशिला के रिवोल्ट को उसने दबा दिया, और जब तक्षशिला के रिवोल्ट को दबा दिया गया तो अशोक की प्रसिद्धि बढ़ गई। जब वो तक्षशिला पहुंचता है तो वहां के लोग कहते हैं कि न वयम कुमारस्य विरुद्धा नापि राज्ञो बिंदुसारस्य, फिर कहते हैं कि हम न कुमार के विरुद्ध हैं न बिंदुसार के विरुद्ध हैं, बल्कि हम उन दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध हैं जो हमारा समय समय पे शोषण करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। तो अशोक ने उदारता की नीति अपनाते हुए यहां पे न केवल रिवोल्ट को दबाया, बल्कि जनता में लोकप्रिय भी हुआ। फिर उसने कश्मीर विजय की, श्रीनगर स्थापना की, उसने नेपाल विजय की, देवपाटन स्थापना की, नगर बनवाया। तो इनकी अशोक की विजय और अशोक की नीतियों ने लोगों के मन और मस्तिष्क में अशोक के प्रति ये भावना भर दी कि अशोक एक कुशल उत्तराधिकारी घोषित होगा, सिद्ध होगा। लेकिन इतने आश्चर्य की बात है कि इतने के बाद भी अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें पूरी सूचना नहीं प्राप्त हो पाती। क्या था इसके पीछे का रीजन?
क्यों नहीं इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अशोक न केवल भारतीय इतिहास में वरन विश्व इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। अशोक ने वो काम किया जो उसे वैश्विक लेवल के जो ऐतिहासिक शासक हैं उनकी श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। अशोक वो महान शासक के रूप में बनता है जिस अशोक उस महान शासक के रूप में अपने को स्थापित करता है जो दिग्दिगांतर तक मौर्य सम्राट के शासक के रूप में अपनी धार्मिक नीति, अपनी प्रशासनिक क्षमता और अपनी सैनिक विशेषता के कारण जाना जाता है। एक तरफ उसने कलिंग युद्ध जीता और उसने शासकों को अपने अंडर में कलिंग को अपने मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो उसके सैनिक क्षमता को दिखाता है। दूसरी तरफ उसने अपनी धम्म नीति के द्वारा संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा जो उसकी उदार नीति को एक्सप्रेस करता है। और तीसरा उसने विदेशी जो संबंध स्थापित किए, विदेशी राजाओं के साथ उसके मैत्री संबंध, फॉरेन पॉलिसी में वो सक्सेस हुआ, ये उसकी तीसरी विशेषता। धम्म नीति का पालन कराने के लिए राजाज्ञाओं को पत्थरों और शिलालेखों पे खुदवाना जो उसकी महानतम काम था और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम काम था। ये उसकी विशेषताएं थी। इस अशोक के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। ओके, गुड बाय।